S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult concepts made easy. Study anywhere, anytime. In this lecture, we'll be learning Cauchy convergence criteria for sequences and Cauchy theorems on limits. So, Cauchy, the mathematician, has given important result, which is Cauchy criteria we call, and then Cauchy theorems also he has given, because the convergence of a sequence is important if we just see from the application point of view, because for a sequence, if it is convergent, it is helpful for finding the sum of the series, with the topic which we will be covering in the next lecture. Hello everyone, welcome to S. Chand Academy. I am Dr. Seema Dhakran. If you want to study Cauchy criteria, Cauchy convergence criteria for sequences and Cauchy theorems on limits, please refer to the book by S. Chand Publishing. The e-book link is given in the description box below. So, I'll start with Cauchy criteria, and before coming to Cauchy criteria, we should know what is a Cauchy sequence. So, I'll start with the definition of Cauchy sequence. So, Cauchy sequence. Already in the previous lecture, we have learned what is a convergent sequence. So, Cauchy sequence definition. It is a special type of sequence. By definition, it will look little difficult, because if you approach any sequence, by definition it seems little difficult, but we have a result. That is why Cauchy criteria, convergence criteria is important. So, definition says a sequence AN is said to be Cauchy sequence, is said to be Cauchy sequence if for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that an minus am less than epsilon for all n greater than equal to m. कहने का मतलब है कन्वर्जेंस में भी ऑलमोस्ट सेम डेफिनेशन लिखी थी, अगर आपने नोटिस किया हो. यहाँ पे हमने एल मेंशन किया था. अब यहाँ पे कॉशी चेक करने के लिए आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप दो टर्म्स का डिफरेंस चेक कर रहे हो, एंड यू आर चेकिंग कि वो कितना छोटा होता जा रहा है. देन ओनली यू से कि वो सीक्वेंस कॉशी है. बट वी हैव अ कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज, I am coming to the important concept, that is Cauchy. So, Cauchy definition is this. Now, Cauchy criteria, convergence criteria. So, Cauchy convergence criteria for sequences. तो Cauchy ने एक क्राइटेरिया दिया है, क्योंकि आप डेफिनेशन से जा रहे हो, इट्स डिफिकल्ट, बट एंड इट इज इन रियल सीक्वेंसेस ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Cauchy has given this criteria for real sequences only. So the statement is a sequence is Cauchy or Cauchy if and only if, you just mind this word, if and only if it is convergent. So it's a big statement कि एक Cauchy sequence कौन सी होगी अगर वो convergent है. अगर वो नहीं convergent है तो वो Cauchy नहीं होगी. एग्जाम्पल्स लेते हैं. अच्छा, यहाँ से ना अभी आपने Cauchy criteria देखा कि convergent and Cauchy both are like if and only if. मैंने एक रिजल्ट लिखा था, important result, if you remember last lecture में हमने किया, a convergent sequence is always bounded. We did this because it was important. अब यहाँ पे Cauchy criteria क्या कह रहा है कि convergent sequence Cauchy है. So it means a Cauchy sequence is always bounded. So you can see कि वो जो criteria, जो Cauchy criteria, उससे कितने सारे results हम we are having the results. So ये भी एक result है. अब आते हैं examples पे. And the very first example is 1 by n.
अब अगर आपको इसको बाय डेफिनेशन प्रूव करना है, प्रूव दैट PT prove that is a Cauchy sequence. So by definition if you go 1 by n, what do you have to do? 1 by n minus 1 by m. आप इस डिफरेंस को चेक करोगे कि ये कितना छोटा होता जा रहा है, एंड इट जस्ट इट मीन्स n और m पे आप कुछ कंडीशंस चेक करोगे एंड यू कीप जस्ट चेकिंग. बट द थिंग इज Cauchy क्राइटेरिया से देखो what this how this Cauchy criteria is helpful. 1 by n है, ये सीक्वेंस हमने अभी वी डिड इट इन बाउंडेड पार्ट. ये सीक्वेंस की लिमिट जो है बोथ वेज वी कैन सी, यहाँ से भी इट इज़ अप्रोचिंग टू 0 एंड इफ वी टेक द लिमिट देन ऑल्सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0. अब ये कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट. अब मैं बार बार कन्वर्जन को आई एम जस्ट कनेक्टिंग द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आपको लगाने आने चाहिए एंड यू शुड हैव दोज रिजल्ट्स इन माइंड वेर एवर दे आर हेल्पफुल. व्हेन यू डू द मतलब एप्लीकेशन पॉइंट आपको वहाँ पे क्लैरिटी होती है. सो ये कन्वर्जेंट है, बाउंडेड भी है. कन्वर्जेंट है तो बिकॉज ऑफ Cauchy क्राइटेरिया, बाय Cauchy कन्वर्जेंस क्राइटेरिया इट इज Cauchy also, because ये convergent है. Every convergent sequence is Cauchy, every Cauchy sequence is convergent, so it is Cauchy. तो आप देख रहे हो कितना सिंपल हो गया इससे ऐसे प्रूव करना. एक एग्जाम्पल और लेते हैं आप, एंड दैट इज n अपॉन n प्लस 1. अब इसको भी अगर आप लिखोगे ना बाय डेफिनेशन, सो बाय डेफिनेशन आएगा an माइनस am. Not every student is comfortable with this definition. अब इसको भी देखो कैसे मैं रिलेट कर रही हूँ. इसकी लिमिट चेक करते हैं. अगर ये कन्वर्जेंट हो गई तो वेल एंड गुड, Cauchy हो जाएगी. अगर ये नॉट कन्वर्जेंट है देन ऑल्सो वेल एंड गुड बाय Cauchy क्राइटेरिया, कि ये आपकी Cauchy नहीं होगी, फॉर श्योर नहीं होगी बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया. सो द लिमिट गोज लाइक, बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी, और लिमिट कॉन्सेप्ट में भी वी डिड कि जब आपका इन्फिनिटी होता है ना, व्हाट यू डू, n इज एज इट इज. बट इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट में बेटर जो भी टर्म इन्फिनिटी को कन्वर्ज करती है और अप्रोच करती है उसको टेक आउट आउटसाइड. सो n को मैंने आउटसाइड लिया, सो आई एम गेटिंग 1 प्लस 1 बाय n कॉमन लिया है, दिस गेट्स कैंसिल. अब आप लिमिट अप्रोच करो, सो 1 बाय इन्फिनिटी विल बी 0, सो इट इज गिविंग यू 1. लिमिट आपकी 1 आ रही है, इसका मतलब है कि आपका जो ये जो सीक्वेंस है ना ये कन्वर्ज कर रहा है. सो इट इज कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट है टू 1, कन्वर्जेंट है. सो बाय Cauchy क्राइटेरिया, इट्स सो सिंपल नाउ. Cauchy's convergence criteria, it is Cauchy also. Now we have done 2 examples जो Cauchy हैं. आप ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जो Cauchy नहीं है, और बहुत इजी है. जब भी आपको एग्जाम में बोला जाए कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट Cauchy सीक्वेंस, क्या करना है, ऐसी सीक्वेंस ले लो जो कन्वर्ज ही ना करे. आप देखो ये वाली जो सीक्वेंस है ना 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स. n ले लो, n क्यूब ले लो. ये जो सीक्वेंसेस है ना ये कन्वर्ज ही नहीं करती हैं. बोथ आर नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट. अब कन्वर्जेंट नहीं है तो बाय Cauchy क्राइटेरिया, नॉट Cauchy इवन. तो कुछ चेक ही नहीं करना है, बहुत इजीली बेस्ड ऑन द कन्वर्जेंस क्राइटेरिया वी आर रिलेटिंग द Cauchy क्राइटेरिया. एंड दिस इज नाउ आफ्टर द break we'll be just taking Cauchy theorem on limits. So they are also very important. So we have main 2 theorems, that those theorems will be just taking after the break. Hello everyone. Thermodynamics फिजिक्स का एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न अक्सर बनी रहती हैं. सिस्टम और सराउंडिंग की ये कन्फ्यूज़न हम दूर करने के लिए आपके सामने आ रहे हैं. मैं हूं डॉक्टर सचिन कुमार और एस चांद एकेडमी पर हम आएंगे और पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे ही टॉपिक्स बिल्कुल आसान तरीके से.
सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम कनेक्टेड रहें और आप तक ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहें और आप बढ़िया से पढ़ाई कर पाएँ। Welcome back to S. Chand Academy. So before going to the break, we did Cauchy convergence criteria and we have seen the importance also. Now two more theorems Cauchy has given, the mathematician, and what are those theorems, how the theorems are important for checking the convergence or finding the limits. Basically they are on limits. So first theorem I am writing, so Cauchy first, this is how we basically write the notation, or this is how we understand Cauchy's first theorem on limits. So it means कि ये जो theorem है ये limits के लिए बहुत important है, and the statement goes like, statement of the theorem, if an is a sequence, और सीक्वेंस का मीनिंग है इट इज अंडरस्टूड कि ये रियल सीक्वेंस है, इट्स नॉट कि इफ आई एम नॉट राइटिंग इट इज नॉट अंडरस्टूड, हम रियल एनालिसिस कर रहे हैं, सो इट इज अंडरस्टूड कि ये रियल सीक्वेंस है. इफ एन इज अ सीक्वेंस एंड लिमिट एन इज एल, इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस की लिमिट अगर डिफाइंड है तो यानी सीक्वेंस इनडायरेक्टली कन्वर्जेंट है, एल को कन्वर्ज कर रही है. देन क्या ऐसा है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज करती है और उसकी लिमिट एल है तो what Cauchy theorem on limits has given, then limit n tending to infinity a1 a2 till up to an upon n. Now you can see कि आपको सिंपल एक सीक्वेंस की लिमिट पता है एंड स्टेटमेंट कह रही है कि उसकी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ऐड करो टिल अप टू एन, nth टर्म, उसको n से डिवाइड करो, अगर वो जो न्यू सीक्वेंस आप फॉर्म कर रहे हो वो भी किसको कन्वर्ज करेगी, l को कन्वर्ज करेगी. एनी हाउ बट दिस रिजल्ट और दिस थ्योरम कन्वर्स, अब आप ऐसे नहीं है वन वे यू कैन मूव बट टिल नाउ कन्वर्स, रिवर्स का अभी तक कोई ऐसा वो नहीं है कि वो होल्ड कर रहा है. देयर इज नो इवन कंडीशन जो हम पुटअप करें और कन्वर्स होल्ड करें. सो बट दिस रिजल्ट कन्वर्स डज नॉट होल्ड. जब भी आपको कन्वर्स होल्ड नहीं करता यू शुड हैव वन वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल, एंड एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग एज आई टोल्ड यू कि वो एग्जाम्पल मैनी कन्वर्स में डजंट, जब व्हेन अ कन्वर्स डजंट होल्ड उसमें फिट होता है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज दिस. अब इस सीक्वेंस को आप वेरी करो, सो -1 1 -1 1 -1 1. क्या खास बात थी इस सीक्वेंस में, ये ऑसिलेट फाइनाइटली वाला एग्जाम्पल है, ये बाउंडेड है, कन्वर्जेंस नहीं है, इवन डाइवर्जेंस भी नहीं दिखेगी इसमें. सो कन्वर्जेंस नहीं है तो ये Cauchy भी नहीं है, अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट वी कैन अप्लाई हेयर. लेकिन अभी Cauchy थ्योरम ऑन लिमिट्स पे आते हैं. अब ये कन्वर्स के लिए अब पहले ये वाली लिमिट देखेंगे, देन विल सी कि रिवर्स जाना है. रिवर्स के लिए यानी पहले आपको ये पता होना चाहिए रिवर्स जाने के लिए, और फिर यहाँ आप आओगे, पहले आप देखोगे कि इसकी लिमिट क्या है. तो लेट्स टेक, इसके लिए पहले आपको क्या करना है, nth टर्म बाद में आप ऐड करोगे, पहले 2 टर्म ऐड करो. 2 टर्म ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है आपके पास 0. जब आप 3 टर्म ऐड कर रहे हो, क्योंकि ऐसे एकदम से जज करना इज इम्पॉसिबल, जब आपने 3 टर्म ऐड करी तो क्या आ रहा है -1. अब आप देखो इट कीप्स गोइंग डाउन, 4 टर्म ऐड करोगे 0, 5 टर्म ऐड करोगे -1, यानी जैसे ही जो आपका नंबर है ना इवन है, व्हेन n इज इवन 0 आ रहा है. जब n इवन है तो आपका जो इवन सम है ना a1, इट इज गिविंग यू, बिकॉज हमें n टर्म्स को ऐड करना है, n टर्म्स को जब ऐड कर रहे हैं तो कंक्लूजन क्या आ रहा है स्पेसिफिकली इस एग्जांपल में, कि जब आप 2 टर्म ऐड कर रहे हो, 4 2 4 6 इवन नंबर्स, 2 4 6 टर्म्स ऐड कर रहे हो 0 आ रहा है. लेकिन जैसे ही आप ऑड पे जा रहे हो इट इज गिविंग यू -1, यानी ये सम जो है ना ये 2 वैल्यूज ले रहे हैं. सो जब आप इस सम को ऐड कर रहे हो और ये n की वैल्यू इवन है
तो सीधा सीधा 0 आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये ऑड है तो ये -1 दे रहा है और n नीचे है, n इज ऑड। लेकिन जब आप दोनों केसेस में कंबाइन करोगे, यहाँ पे तो कुछ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 ही आएगा। यहाँ पे जब आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लोगे तो -1/∞ 0, यानी ओवरऑल जो लिमिट आई, वेदर द सम इज डिफरिंग, सो देयरफॉर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 टिल अप टू an अपॉन n, अल्टीमेटली किसको अप्रोच कर रहे हैं, 0 को। अब आपको वो तो पता चल गया कि a1 और an तक का सम डिवाइडेड बाय n इज 0, बट वेरी क्लियरली यू कैन सी ये जो सीक्वेंस है ना, इसकी लिमिट आप बता ही नहीं सकते, यानी जो an है, ये वाला जो टर्म है, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये हम कर चुके हैं, बिकॉज -1 और 1 दोनों तरफ अप्रोच हो रही है इसमें। सो दिस इज एनी हाउ लिमिट an इज नॉट डिफाइंड, और यू कैन से an इज नॉट कन्वर्जेंट, यानी कन्वर्स होल्ड नहीं करता है कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स का। अब मैं दो एग्जांपल लेती हूँ कि व्हाई दिस वन वे यानी द थ्योरम इज इंपॉर्टेंट। सो वेरी फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग इज, सो एग्जांपल्स ऑन Cauchy first theorem on limit. So how it is important? So find limit n tending to infinity 1 by n 1 plus 1 by 2 plus so on plus 1 by n, ये आपको निकालनी है। अब कैसे आप अप्लाई करोगे कॉची थ्योरम ऑन लिमिट्स, कैसे? अब आप ये देखो, ये जो टर्म है इसको कंसिडर करो, बिकॉज ये an है। अगर आपने इसको n की टर्म्स में लिखा है, सो फॉर द सोल्यूशन आपको कौन सी थ्योरम कहाँ अप्लाई करनी है, उसके लिए भी यू शुड हैव लाइक कि कोई ऐसा नहीं है एक ही थ्योरम एक ही एग्जाम्पल में फिट होगी। सो यू कैन इवन ट्राई दूसरी थ्योरम भी, बट अभी वी आर लर्निंग कि कॉची थ्योरम ऑन फर्स्ट कैसे अप्लाई होगी। सो 1 by n अगर आप लो लिमिट, ओके नाउ लेट an is 1 by n, ठीक है। सो लिमिट an is limit an n tending to infinity is limit n tending to infinity 1 by n is 0, ठीक है। आप इस पे लगाएंगे कॉची थ्योरम एंड विल सी कि वो जो रिजल्ट है ना वो वही वाला आएगा। कैसे आएगा? थ्योरम सेज कि an की अगर लिमिट an अगर 1 by n है तो a1 प्लस a2 एंड सो ऑन 1 by n अपॉन n। अब आप कैसे वेरी करोगे? देखो an 1 by n है तो a1 क्या होगा? 1, a2 1 by 2 एंड सो ऑन 1 by n। थ्योरम के अकॉर्डिंग n से डिवाइड भी करना है। तो थ्योरम कहती है कि अगर an की लिमिट 0 है, सो ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बिग वाला, इसकी भी लिमिट क्या आएगी? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n tending to infinity, this will be 0 by Cauchy first theorem on limit. So this is how this important। अगर इसको आप किसी और एग्जाम्पल या किसी से भी ट्राई करोगे, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा। यू कैन ट्राई जो हमने पहले कन्वर्जेंस की लिमिट वाले कॉन्सेप्ट किए थे वो आप ट्राई कर सकते हो। इट्स डिफिकल्ट दैट वे। सो कॉची थ्योरम हैज़ मेड दिस लिमिट फाइंडिंग ईजी। So now first theorem we have done, one example we have done, and we have seen the importance of Cauchy theorem, but that is first theorem. Now Cauchy's second theorem. Cauchy's second theorem on limits. And what exactly the theorem states? So the statement is, let an be a sequence but this in this theorem I am writing one important thing, and an be a sequence and an is greater than 0। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन ली है। फर्स्ट Cauchy's फर्स्ट थ्योरम में कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की थी। बेसिकली ऑन द टर्म्स का मीनिंग है जितनी भी टर्म्स है ना आपकी सीक्वेंस में वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। एक भी टर्म 0 नहीं होगी फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n। देन इफ लिमिट an is L
limit an is L, we get a1 a2 till up to an का प्रोडक्ट का पावर 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी L. सो यू कैन सी पावर कॉन्सेप्ट में लिमिट निकालना वैसे ही डिफिकल्ट हो जाता है. सो यहाँ पे आप देखो कि अगर आपकी कोई भी सीक्वेंस है, फर्स्ट थिंग, अगर आपको कॉशी थ्योरम स्पेशली सेकंड लगानी है ना, तो आपकी सारी टर्म्स पॉजिटिव होनी चाहिए. दिस इज अनदर कंडीशन. तो अगर सारी टर्म्स पॉजिटिव है तो आप ये वाली कंफर्टेबली लगा सकते हो. देन अगर उस सीक्वेंस की लिमिट L आती है तो आप दूसरी एक जो सीक्वेंस बनी है दैट इज जो प्रोडक्ट से आई है a1 a2 an एंड उसका भी पावर 1/n, इस डिफिकल्ट सीक्वेंस का लिमिट भी L आएगा. दिस इज व्हाट दिस थ्योरम इज स्टेटिंग. एंड नाउ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यू अंडरस्टैंड कि हाउ एंड कैसे ये हेल्पफुल है फाइंडिंग द लिमिट्स, बिकॉज थ्योरम बेसिकली लिमिट्स से ही कनेक्टेड है. सो एग्जाम्पल के लिए वी नो दैट limit n tending to infinity 1 plus 1 by this is e. We have already done it in indeterminate forms. This limit how we find, you can refer that lecture if you want to know कि limit ऐसे कैसे आती है. यहाँ पे it is given. We know that this find limit n tending to infinity. So the example is we have this limit, we know it, and as I told you कि if you want to know how this limit is coming as e, वो आप रेफर कर सकते हो. indeterminate forms lecture you can see, you can watch. अब इसके बेसिस में आपको ये वाली लिमिट फाइंड आउट करनी है. अब एनी हाउ आप देखो यहाँ पे पावर है, जब भी कोई पावर होगी तो यानी फर्स्ट थ्योरम विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर कॉशी थ्योरम ऑन कॉशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, बिकॉज उसमें कोई पावर कॉन्सेप्ट नहीं था. अनदर थिंग इज कि जो ये टर्म्स है ना, ये वाली आप देखो ये सारी पॉजिटिव है, ठीक है. सो यानी कॉशी थ्योरम ऑन सेकेंड थ्योरम हम लगाते हैं एंड विल सी कि वेदर ये वाले रिजल्ट. और देखने में दिस लिमिट यू कैन सी ये जो टर्म है ये खुद कैसी कितनी डिफिकल्ट लग रही है. 2/1, 3/2 होल स्क्वायर, 4/3 होल क्यूब. यू कैन नॉट कैलकुलेट द लिमिट. अगर आप इसको कैसे भी जो अभी डायरेक्ट लिमिट आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे. इट मीन्स द थ्योरम इज सेकेंड थ्योरम हाउ इट इज हेल्पफुल वो देखो. थ्योरम के अकॉर्डिंग सो बाय फॉर द सॉल्यूशन बाय कॉशी सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव क्या है बेसिकली थ्योरम ला. वी हैव कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an L विल गिव अस a1 a2 एंड सो ऑन an टू द पावर 1/n. ये लिमिट आपकी L आएगी, ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग अब देखो यहाँ पे an है, अब मैं इसको an कंसिडर कर रही हूँ. सो मेरा an कंप्लीटली क्या है, ये पूरा है. दिस कंप्लीट टर्म इज an. क्लियर. सो अब इसको अगर ये an है, इसी के अकॉर्डिंग आई एम पुटिंग द वैल्यूज. सो माई an इज इन दिस केस वी हैव an एज 1 + 1/n होल पावर n. ये पूरा कंप्लीट. अब यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करो, सिर्फ वैल्यूज पुटअप करो. ये थ्योरम अप्लाई किया हमने. a1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे भी 1, यानी 1 + 1 2, 2 to the power 1. सो दिस इम्प्लाइज लिमिट 2/1, or if you don't write it, it's just okay. So 2/1, then when you are putting 2, because next number is 2, so 1 + 1/2 whole power 2. So 1 + 1/2 is 3/2 whole power 2. Then next आएगा, आप जब 3 पुट करोगे 4/3 whole power 3 and so on. Last number में LCM जब आप ले रहे हो तो it is giving you n + 1/n whole power n. अकॉर्डिंग टू द लिमिट इसकी पूरी पावर 1/n जाएगी, ठीक है. अब देखो आप यहाँ पे थ्योरम के अकॉर्डिंग यू आर सेइंग कि अगर आपको एक टर्म की nth टर्म की लिमिट पता है, जो कि हमें पता है इसकी e है, देन द थ्योरम सेज कि उनकी प्रोडक्ट करो n टर्म्स की प्रोडक्ट की, जो कि हम कर चुके हैं. एंड वी कैन सी ये हमारी जो टर्म्स है ना, ये एग्जैक्टली जो हमें रिजल्ट चाहिए था उससे मैच कर रहे हैं. और अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये लिमिट भी e के इक्वल आएगी. Nothing to calculate, it just on the basis of the theorem you can say कि ये limit e आएगी. So complicated limit, but the theorem has made it easy, and you can see the importance now for both the theorems. So in this lecture we have done Cauchy convergence criteria, then
Cauchy first theorem, second theorem, examples based on the theorems we have done. If you want to study the Cauchy convergence criteria, Cauchy theorem on Cauchy theorems, and we have two theorems, Cauchy first theorem, Cauchy second theorem, in detail, please refer to the book by S. Chand Publishing. The ebook link is given in the description box below. Don't forget to like, share and subscribe S. Chand Academy. Don't forget to press the bell icon for the future updates. Stay tuned, stay connected, keep watching the lectures. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.